आप सभी का। मैं हूं कृतिका। बात करेंगे न्यूज पंच में तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले सीधा रुख करते भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। Offender, but he is a DMK functionary with many instances and photographs and evidence of him hobnobbing with the top leadership of the DMK party. This type of lawlessness that is prevailing in India Alliance DMK governed Tamil Nadu is being characterized by history cheaters, violent criminals, sexual offenders who are becoming untouchable because they have the protection as DMK functionaries of the police and the government. The BJP and the NDA in Tamil Nadu are the only parties to have repeatedly raised this issue, have struggled, starting from our state president Annamalai ji to every Karyakarta in the BJP Tamil Nadu, have raised their voice to deliver justice to this young lady whose FIR, if you read, and I request all of you to please read the FIR, her complaint, where Ganashekaran, this DMK functionary, threatened her on multiple occasions with exposure, threatened her family if she dared to file a complaint. This is the kind of lawlessness, this is the kind of fear psychosis that the DMK functionaries and DMK is imposing on the people of Tamil Nadu. And as you know, today there was a march by the Mahila Morcha of the BJP from Madurai, and this march, which is everybody's right, and I specifically point out through you to these constitution-waving members of the India Alliance who talk about the constitution at every stage, that Article 19(1)(b) of the Indian Constitution gives the right of assembly of any gathering anywhere in the country. Despite this constitutional right, our workers and our karyakartas and our leaders have been arrested. Ostensibly, they call it preventive arrest, but without any ambiguity, it is a complete exposure of how the India Alliance, DMK and the Congress talk about the Constitution on one hand, but do everything on the other hand to violate the Constitution and violate the rights of the people of Tamil Nadu. I also want to touch on one separate topic, which is also connected to India Alliance, which is also connected to the Congress, which is their economic management. I want to draw your attention, and to all your viewers and your readers, the attention how Congress party, with its politics of fake promises, freebies, have driven states like Himachal Pradesh into bankruptcy, are driving Karnataka into bankruptcy, and the proof is how the Himachal CM has now talked about raising electricity prices. He is now talking about the subsidy that was given by the BJP government of 125 units being waived, and their electoral promise, their election promise of 300 free units, they have completely forgotten. और जिस तरीके से कहीं ना कहीं राजीव चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर जो कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में जो फ्रीबीज की, यानी कि जो गारंटियां दी गई थी चुनाव से पहले और जो वादे किए गए थे, उसको लेकर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए। इसी के बाद सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त आज न्यूज पंच का, और न्यूज पंच में आज क्या कुछ खास है सबसे पहले बताते हैं वो तमाम खबरें। तो न्यूज पंच में आज जिन प्रमुख खबरों की बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर है जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि उनकी मुसीबत कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बढ़ती हुई
नजर आ रही है, कैसे बढ़ रही है उनकी मुसीबत और हाईकोर्ट से किस तरह उन्हें झटका लगा है, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी संभल से ही जुड़ी हुई है, जहां पर वक्फ का जो दावा था वो अब कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता वो नजर आ रहा है। कैसे पड़ रहा है ये दावा उल्टा, क्योंकि लगातार वक्फ संपत्ति को लेकर इस वक्त घिरता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी खबर होगी कश्मीर से जुड़ी, जहां पर अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान इस वक्त सामने है कश्मीर को लेकर और 370 हटने को लेकर क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही चौथी खबर है छात्रों से जुड़ी हुई, जहां बीपीएससी छात्रों की तरफ से जहां एक तरफ आंदोलन हो रहा है, लेकिन वहीं इस आंदोलन में अब राजनीतिक गिद्ध भी घुस चुके हैं और सीधे तौर पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश ये तमाम नेता कर रहे हैं। विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन इसी के साथ कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को फिलहाल ठुकरा दिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में बर्क को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच भी जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को ये पूरी हिंसा हुई थी। सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी मस्जिद का सर्वे करने के लिए और इस दौरान हिंसा भड़की थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया था। और इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल का भी नाम इसमें शामिल था। इकबाल महमूद के बेटे का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस घटना में कथित तौर पर शामिल है। एफआईआर के बाद सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसके बाद में जब एफआईआर रद्द किए जाने की गुहार इसके जरिए लगाई गई, जिसमें आज सुनवाई हुई और एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी गई। इसी पर जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज सपा सांसद बर्क को लेकर क्या कुछ सुनवाई हुई है। तो आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क को आज बड़ा झटका लगा है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर की जो मांग की गई थी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से वो इस वक्त ठुकरा दी है और अब कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें पुलिस की जांच जारी रहेगी और उसमें पूरा सहयोग जियाउर रहमान बर्क करे। पुलिस नोटिस देकर पूछताछ जियाउर रहमान बर्क से कर सकती है। सीधे तौर पर हाईकोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि ये पूछताछ की जा सकती है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं हैं और इसकी वजह से गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी। यानी कि गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन एफआईआर से जियाउर रहमान को कोई राहत नहीं मिली है। बर्क को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा, ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है। जांच में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तारी होगी, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस बात को कहा है। यानी कि कुल मिलाकर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी जियाउर रहमान बर्क की तरफ से, लेकिन ये एफआईआर रद्द नहीं हुई है। 24 नवंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी उसको लेकर ये एफआईआर थी। इसी पर लेकर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं विकास सिंह, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, जियाउर रहमान बर्क को अगर हम देखें तो गिरफ्तारी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन एफआईआर को रद्द करने की जो मांग की गई थी उसे कोर्ट की तरफ से ठुकरा दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस की जांच में पूरा सहयोग सांसद करें। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सपा सांसद इस पूरी जांच में जो पुलिस चाह रही है उनके साथ कोऑपरेट करें और उस जांच में जो पुलिस जिस तरीके से पूछताछ करना चाहती है उनका सहयोग करें। सीधी बात स्पष्ट कही है। हालांकि जो सपा सांसद गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द कराने के लिए, बिल्कुल उनको तगड़ा झटका लगा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो संभल में जांच चल रही है इस प्रकरण को लेकर, उसमें एक और आरोपी पकड़ा गया है। वो आरोपी जिसने पुलिस अधीक्षक के ऊपर फायर किया था उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद तमाम सारे और बड़ी चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसके आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं सांसद के नाम भी जो एफआईआर दर्ज की गई थी, चूंकि वो 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती नहीं है, वो थाने से ही उनको जमानत मिल जाती है। तो फिलहाल अभी कोर्ट ने कहा है कि अगर आप जांच में सहयोग करते
करते रहेंगे तो आपकी गिरफ्तारी अभी नहीं होगी, लेकिन अगर सहयोग नहीं करते हैं या अन्य कोई प्रकरण आता है तो ऐसे मामलों में उनके ऊपर अभी भी तलवार लटकी हुई है। तो किसी प्रकार की कोई एडवांस जमानत जो अपील है उन्होंने अभी की भी नहीं है उसकी एंटीसिपेटरी बेल के लिए, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात थी कि वो जो कह रहे थे कि हमारी एफआईआर जो तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा एफआईआर उनके ऊपर जो की गई हैं उनको रद्द कर दिया जाए उन सभी एफआईआर को, तो हाईकोर्ट ने उससे साफ इनकार कर दिया है। ये अब निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं अब संभल पुलिस के साथ जो पूछताछ होगी उसमें जो पुलिस के सवाल होंगे उन पर वो सीधा सीधा जवाब देंगे। साथ ही साथ जो जांच आयोग, न्यायिक आयोग है, वो भी अगर उनसे पूछताछ करना चाहेगा इस मामले पर तो उसके समक्ष भी वो पेश होंगे। ये पेश होना अब उनकी मजबूरी हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि आप जांच में जाकर सहयोग कीजिए। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस पर रहेगी लगातार नजर, लेकिन इसके साथ ही अगली एक और खबर है जो कि संभल से ही जुड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो संभल है वो पिछले साल हुई हिंसा के बाद से ही लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के लिए संभल के जामा मस्जिद के पास ही एक नया पुलिस पोस्ट बना रहा है, और इस नए पुलिस पोस्ट को लेकर भी कुछ दिनों से विवाद चल रहा है कि जिस जमीन पर इस पोस्ट को बनाया जा रहा है उसे लेकर तरह तरह की दलीलें सामने आई। कहा जा रहा था कि पुलिस प्रशासन जिस जमीन पर नई पोस्ट तैयार कर रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन अब उस जमीन को लेकर जो कागजात सामने आए हैं प्रशासन ने उसे फर्जी करार दिया है। इस पूरे मामले की जांच संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम से करवाई थी। दरअसल वक्फ के बहाने अरबों की संपत्ति हड़पने की ये कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही थी, जिसमें प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन का कोई वास्तविक दावेदार नहीं मिला और इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा। जहां जहां गड़बड़ है वहां वहां और केस दर्ज होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी प्रशासन की तरफ से की जाती है। बात करेंगे इस पर, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है। तो वक्फ की संपत्ति को लेकर ये पूरा विवाद इस वक्त सामने आया, जहां संभल में वक्फ संपत्तियों पर ये पूरा बड़ा विवाद है और ये कहा जा रहा है कि जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही थी वो जमीन असल में वक्फ की है। ये बात कही जा रही थी। संभल सदर का 4 किलोमीटर क्षेत्र वक्फ संपत्ति में दर्ज है, ये दावा किया गया था और इस दावे में 4 किलोमीटर इलाके का 1929 में अनरजिस्टर्ड वक्फ की बात इसमें कही गई है। तो सीधे तौर पर वक्फ को लेकर के पूरी बात इसमें कही गई। मदरसा निर्माण के नाम पर हजारों बीघा भूमि का वक्फ है, यानी कि जो पूरी संपत्ति है वो वक्फ के दायरे में आती है। वक्फ के बहाने अरबों की संपत्ति हड़पने की ये कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही थी। इसी पर सीधा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। रामेंद्र, जिस तरीके से वक्फ की संपत्ति का ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि जब कागजात दिखाने की बात आई तो वो तमाम कागजात जो हैं वो फर्जी साबित हुए, जिसके बाद में या बड़ा एक्शन लेते हुए भी प्रशासन, संभल प्रशासन नजर आए इस पूरे मामले पर। देखिए कृतिका, जो वक्फ संपत्तियां की जाती हैं पहले लीगली ये हो कि जिसने वक्फ की ये प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश में करीब 54 जिलों में जो अब तक के डेटाज सामने आए हैं उसमें यह देखा गया है कि करीब 30 से 37% जमीन जो वक्फ के पास है वो फर्जी है। जैसे स्टेट लैंड जो सामुदायिक कार्यों के लिए ज़मीनें दी जाती हैं, जिसमें सड़क बनती है, जिसमें चक रोड होते हैं, जिसमें गलियारा होते हैं, ये स्टेट लैंड मानी जाती है। इसको वर्ग 5 की लैंड कहा जाता है जिसमें सरकार के पूरे अधिकार में रहती है। तो कई जगह जो वर्ग 5 की लैंड है उसको भी वक्फ कर दिया है, यानी जहां सरकार का अधिकार है वो जमीन कैसे वक्फ हुई ये सरकार जांच करा रही। तो अब तक जो डेटा निकल के हैं वो लगभग जो 54 जिले हैं उनमें 37% वक्फी जमीनें फर्जी पाई गई हैं। और जो संभल की घटना है उसने ये बात तय सच साबित की है कि सरकार जो आंकड़े कह रही है ये आंकड़े कहीं इससे ज्यादा हैं। अगर संभल में जो पेपर दिखाए गए हैं ये जमीन उसकी है कि नहीं है, वो व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और वक्फ उसने कैसे की। दूसरा, इस्लाम को मानने वाले और जानने वाले भी जानते हैं कि वक्फ जिससे ली जाती है लीगली ये सारी चीजें देख ली जाती हैं। वक्फ जमीन विवाद के कारण नहीं ली जाती है, वक्फ कोई करता है इसलिए ली जाती है। तो ये इस्लाम में भी इसका कंडीशन है कि वो देख ले उसके बाद ही वक्फ संपत्ति लेकर का। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं अगली प्रमुख खबर का। दरअसल आर्टिकल 370 के खत्म होने से जम्मू कश्मीर में क्या बदला, इस बात को लेकर देश में लगातार चर्चा बनी रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर बहुत साफ शब्दों में बताया है कि आखिर आर्टिकल 370 के खत्म होने से क्या बदलाव हुए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बीते कल नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सातत्व और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत पुस्तक का विमोचन किया है और इस दौरान अमित शाह ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कई बातों का जिक्र किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने कश्मीर की बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार कश्मीर के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जो हम खो चुके हैं उसे जल्द ही प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने धारा 370 और आतंकवाद का जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद के इकोसिस्टम को पूरी तरह समाप्त करके शांति और स्थिरता को मजबूती दी है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, इसे कानून की कोई धारा नहीं बदल सकती। आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। तंवर साहब ने ढूंढ ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तापित किया है और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला। धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक है। तो अमित शाह ने आतंकवाद और धारा 370 का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में नीरज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, सीधे तौर पर अमित शाह को हमने सुना और अमित शाह ने कहा कि भारत जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा और यही बात उन्होंने संसद में भी कही थी। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि जो हमने खोया है उसे हम पाने की कोशिश करेंगे, उसे जरूर पाया जाएगा। इस बात के क्या मायने निकाले जाएं नीरज? नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अमित शाह ने अपने संबोधन में महर्षि कश्यप का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने महर्षि कश्यप और कश्मीर का जो कनेक्शन है उसका भी जिक्र उन्होंने किया और साथ ही अगर हम देखें तो कश्मीर में अब कहीं ना कहीं नई बयार देखने को मिल रही है। 2018 की अगर हम बात करें तो 2100 बार कश्मीर में पत्थरबाजी हुई, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद में 2024 में पत्ता तक नहीं हिला है कश्मीर के अंदर। ये बात कही गई है अमित शाह की तरफ से। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 370 ने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का बीज बोया था, जो आतंकवाद का जिक्र हम लगातार करते हैं। 370 हटने के बाद में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। 70% कमी आतंकी घटनाओं में आई है 370 हटने के बाद में। 2019 में ये 370 हटाई गई। घाटी से आतंकवाद के इकोसिस्टम को नष्ट किया गया है। जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार इस पर अपनी नजर भी बनाए रखती है। आर्टिकल 370 आतंकवाद की पोषक थी, ऐसा कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। तो ये तमाम बातें अमित शाह ने अपने संबोधन में कही, क्योंकि लगातार हम जिक्र करते हैं धारा 370 का कि जब से धारा 370 हटी है तो बीते सालों में क्या कुछ बदलाव कश्मीर के अंदर आया है। पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों में भी काफी इजाफा हमें देखने को मिला है कश्मीर के अंदर। इसके साथ ही महर्षि कश्यप का कश्मीर कनेक्शन की भी बात अमित शाह ने कही। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के पुत्र हैं कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की रचना की है। और आखिर क्यों कश्मीर से कनेक्शन उनका जोड़ा जा रहा है वो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि महर्षि कश्यप ने कश्मीर में तपस्या की थी। सालों ये तपस्या हुई और इस तपस्या की वजह से, क्योंकि वहां पर रहकर उन्होंने तपस्या की और इसीलिए कश्मीर का नाम पड़ा। ऋषि कश्यप के नाम पर ही कश्मीर को बसाया गया था। साथ ही वो पहले राजा भी थे कश्मीर के। तो ऐसे में ये कनेक्शन महर्षि कश्यप का कश्मीर के साथ सामने आता है।
और इसी का जिक्र कहीं ना कहीं अमित शाह करते हुए नजर भी आए थे। और कुल मिलाकर धारा 370 को लेकर के एक बार फिर से ये साफ कर दिया गया कश्मीर को लेकर के अमित शाह की तरफ से कि ये नहीं हटाई जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि है बिहार से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें कि बीपीएससी री एग्जाम की मांग को लेकर बिहार में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आज कई छात्र संगठन सड़कों पर उतरे हैं और छात्रों के इस आंदोलन में अब राजनीतिक एंट्री भी हो चुकी है। आंदोलन में छात्रों के अलावा अब नेता अपनी राजनीति चमकाते नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी हैं। एक हफ्ते पहले इस आंदोलन में शामिल हुए प्रशांत किशोर अब अनशन पर बैठ गए हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी प्रशांत किशोर पूरी रात गांधी मूर्ति के पास डटे रहे। तो वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव के चक्का जाम आह्वान के तहत उनके समर्थकों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेनों को रोक दिया। साथ ही पूर्णिया में चक्का जाम का ज्यादा असर देखने को मिला और वहां भी स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका गया। और अब आरजेडी भी इस आंदोलन के मैदान में कूद पड़ी है और राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर छात्रों के इस आंदोलन पर अब सियासी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। करेंगे इस पर बात, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नेता इस आंदोलन का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो छात्रों के बीच कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गिद्ध इन दिनों नजर आने लगे हैं। पटना में बीपीएससी कैंडिडेट्स जो है वो लगातार धरना दे रहे हैं, दोबारा एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो राजनीतिक गिद्ध हैं, या यूं कहें कि राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस आंदोलन में घुस चुके हैं, एंट्री उनकी हो चुकी है और अपनी राजनीति चमकाते हुए नेता इस बीच यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो पप्पू यादव का नाम इसमें सामने आया है, साथ ही प्रशांत किशोर का नाम इसमें सामने आया है। पप्पू यादव की तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगनी गई तो वो बिहार बंद करेंगे। ट्रेनों को रोका गया, उनके समर्थकों की तरफ से सड़कों पर लंबा जाम लगाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमरण अनशन पर भी प्रशांत किशोर जो है वो बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन जो है वो छात्रों की तरफ से शुरू हुआ था, जो कि अब कहीं ना कहीं जिस पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उनका रुख करते हैं। मधुरेश, सबसे पहले तो ताजा अपडेट क्या कुछ है इस आंदोलन को लेकर वो बताइएगा, और इसके साथ ही जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में अब कहीं ना कहीं सियासी रंग भी चढ़ रहा है, जो राजनीति करते हुए जो लोग हैं वो इस आंदोलन में अब घुसते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो छात्रों का आंदोलन था वो पूर्ण रूप से अब सियासी रंग ले चुका है। और चाहे बात प्रशांत किशोर की हो या राजद की हो या कांग्रेस की हो, सब ने अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से आज जुलूस मार्च निकाला जाएगा पटना के गांधी मैदान में। हालांकि एरिया पहले से प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर किसी तरह का जुलूस या प्रदर्शन करने की मनाही है। और पटना हाईकोर्ट ने गर्दनी बाग का जो एरिया है वो जुलूस और प्रदर्शन के लिए डेजिग्नेटेड किया है। इसीलिए कल प्रशांत किशोर के साथ लगभग 150 लोगों पर एफआईआर भी जिला प्रशासन ने किया। जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस भी दिया। इसके बाद भी प्रशांत किशोर जो है वो गांधी मैदान की गांधी मूर्ति पे डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो वहीं बैठे रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो छात्र पहले से प्रदर्शन कर रहे थे गांधी गर्दनी बाग में, वो वहां पे अकेले बैठे हुए हैं और वो वहां पर किसी तरह के जो राजनीतिक दल हैं उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि वो उनसे हट करके दूसरी जगह प्रदर्शन करें, अपना मार्च अकेले निकाले। और इनके मार्च में जो ज्यादातर लोग नजर आ रहे हैं वो उस राजनीतिक दल से संबद्ध छात्र संघ के ही लोग हैं। जो नॉर्मल छात्र हैं, जो ओरिजिनल छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहीं भी इन राजनीतिक दलों के प्रदर्शन में शामिल नहीं दिख रहे हैं। और पप्पू यादव की जहां तक बात करें, जिन्होंने आज चक्का जाम किया था, तो पप्पू यादव के चक्का जाम का असर पटना में कतई देखने को नहीं मिला है। हालांकि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद है और उनका वर्चस्व पूर्णिया में है, तो पूर्णिया में कई जगह ट्रेनों को रोका गया है, सड़क पर भी जाम लगाया गया था। हालांकि जिला प्रशासन ने तुरंत सड़क खाली करवा दिया और ट्रेनों की जो आवाजाही थी उसको भी सुचारू रूप से चालू करा दिया गया। जी मुद्रेश, लेकिन अगर हम देखें तो इसके साथ ही जहां एक तरफ पप्पू यादव और प्रशांत किशोर इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है और वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां यूं कहें कि राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है इस आंदोलन के सहारे। सही बात है। देखिए, तेजस्वी यादव शुरू में जो मूवमेंट था, छात्र आंदोलन था, इसको लेकर के उन्होंने बयान दिया था कि ये छात्रों का आंदोलन है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं इसमें नहीं आऊंगा।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रशांत किशोर अपनी रोटी सेक रहे हैं, पप्पू यादव इसका फायदा उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी को इसमें एक बढ़त मिलती हुई दिखी और तेजस्वी खुद इस आंदोलन में कूद पड़े हैं। और जो छात्र राजद है और इसके अलावा जो मेन राजद पार्टी है वो भी प्रदर्शन में शामिल हो गई है। आज एक मार्च भी निकाला जा रहा है जिसमें वो सीएम आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस मार्च का जो नेतृत्व है वो आयशा, छात्र राजद और कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जो छात्र सीरियस है बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, वो समझ रहे हैं कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति की जा रही है, इनसे उनका भला नहीं होने वाला है। हालांकि इन सब के बीच में एक बड़ी बात मैं आपको एक और बता दूं कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका री एग्जाम कल ही लिया जाना है और उसके लिए जो बीपीएससी है और जिला प्रशासन है उसने पूरी तैयारी कर ली है। 7 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो कि कल के री एग्जाम में जो सुचारू रूप से कराया जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका भी वो ध्यान रखेंगे। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश जुड़े हुए थे। इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। संभल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि संभल में एसपी पर गोली चलाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 नवंबर को जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी, गोलीबारी वहां पर की गई थी और उस दौरान अराजक तत्वों में शामिल जो युवक है उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी बीती 24 नवंबर 2024 को और इस दौरान वहां पर हिंसा की गई और हिंसा के दौरान ही इस युवक ने एसपी पर गोली चलाई और इस पूरे मामले में फिलहाल अब इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस युवक के पास से कई सारी चीजें भी बरामद की गई हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं संभल हिंसा से जुड़ी सबकी सबसे बड़ी खबर, जहां 24 नवंबर को ये पूरी हिंसा हुई थी जब सर्वे करने के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। जामा मस्जिद का ये सर्वे होना था और इस दौरान जो हिंसा हुई, आरोपी के पास से फिलहाल तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। एसपी पर गोली चलाने वाला ये युवक है जिसको इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी आगे और कितनी गिरफ्तारियां की जाती हैं। तो ऐसे में लगातार फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। सोमवार को फिर होगी सुबह 10:30 बजे आपसे मुलाकात। नमस्कार।